ہاں اچھا آ جاتے گردن موڑنی پڑے گی. یہ ویسے بھی ہم لوگ غصے پہ کر رہے ہیں نا, ہاں تو پھر غصہ نہ آ جائے. نہیں ویسے غصہ نہیں, ویسے غصہ بڑا ہی وہ کہتے ہیں نا ایک نیچرل سا فیکٹر ہے, لیکن اس نیچرل سے فیکٹر کی وجہ سے ہم نے بڑا نقصان بھی اٹھایا ہے آپ نے اپنے اس غصے کی وجہ سے. اور آپ کو سب سے پہلے تو مجھے بتائیں آپ کو کس بات پہ غصہ آتا ہے؟ پہلے میں تو گیس سے ہی پوچھوں نا ذرا. اچھا ویسے آنیسٹلی اب ود ٹائم میں نے اپنے آپ پہ بہت ورک کیا ہے. میں کبھی بھی بہت زیادہ شارٹ ٹیمپرڈ نہیں تھی, لیکن ہاں آبویسلی بینگ اے ہیومن بینگ غصہ آیا ہے, اور غصے کے کچھ انسٹنسز ایسے بھی ہوئے ہیں زندگی میں جنہوں نے مجھے الٹا ڈیمیج کیا ہے. لیکن ابھی لیٹلی مدیحہ 1 مہینے پہلے کی بات ہے, غصہ آیا, اور غصے میں ایسا نہیں کہ کوئی بہت زیادہ, لیکن کچھ ایسی باتیں میں کہہ گئی فرینڈ سے جو کہ آپ ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ غصے میں کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر, اور دوسری نہیں ٹون بھی نہیں, آپ پھر آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ دوسرا انسان کیسا فیل کرے اس بارے میں, کیسے لے گا, کہ وہ کیسے لے گا. اگر مجھے بات چھوٹی لگ رہی ہے, ضروری نہیں جو مجھے بات اتنی بڑی نہیں لگ رہی وہ اس کے لیے چھوٹی بات ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ بہت بڑی بات ہو. تو اس ایکسپیرینس سے نا مجھے ہلا دیا, کیونکہ میرے دوست نے پھر اس کو اتنا زیادہ سیریسلی لیا کہ میں نے اب جا کے ایٹ دس ایج ریئلائز کیا کہ غصے میں اگر آپ اپنی زبان بند کر لیں اور وہ کچھ گھنٹے آپ نکال دیں اور آپ ریئیکٹ نہ کریں تو آپ کی زندگی بہت آسان رہے گی. غصے میں کی ہوئی بات میں نہیں جانتی کسی بھی انسان کو, یا میں اپنی لائف میں دیکھوں کہ میں نے غصے میں کی ہوئی کوئی بھی ایسی بات کی ہو جس پہ میں کہوں کہ ہاں وہ سمجھداری والی بات تھی, یہ بات میں نے صحیح کی, ہمیشہ ریگریٹ رہتا ہے کہ کیوں بول دیا ایسے, کیوں ایسے میں نے کہہ دیا, کاش. اور اس وقت میرے یہی ہے کہ باقی اگر اس وقت مجھے ایک وش دی جائے نا مدیحہ, ایک وش, تو اس وقت میں وہ وش اس پہ یوز کروں گی کہ کاش میں 1 مہینے پہلے جا کے وہ جو چند لمحات تھے جس میں نے کوئی ایسے 2 جملے بول دیے جو کہ وہ میں واپس لے لوں, کیونکہ وہ میں نے غصے میں کیا تھا, وہ میرا غصے کا ایکشن تھا, اور وہ میں ریگریٹ کروں گی فار دا ریسٹ آف مائی لائف. تو غصہ بہت بری چیز ہے, بہت بری. نہیں ریگریٹ اس لیے کروں گی کیونکہ وہ ایک دل میں نا کیونکہ وہ مائی فرینڈ لیفٹ می آفٹر دیٹ. بٹ ریئلائزیشن بھی تو ہے نا, مطلب اب اگر آپ نیشنل ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے بات بھی کریں تو آف کورس یو ہیو دس ریئلائزیشن ایز ویل کہ ہاں پہ نہیں کرنا چاہیے. آف کورس ریئلائزیشن ہے, ریگریٹ ہے, اینڈ اٹس اے لرننگ ایکسپیرئنس. ہو سکتا ہے یہ اس لیے ہونا کیونکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے کیوں ایسے ریئیکٹ کیا, اتنی بڑی بات نہیں تھی جو میں نے کہی, وہ بھی اتنی بڑی بات نہیں تھی, لیکن اس کا جو ریئیکشن اور جو وہ اس کا جو آؤٹ کم ہوا وہ بہت بڑا تھا. تو میں نے پھر اب آئی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن آفٹر گوئنگ اوور اٹ اگین اینڈ اگین کہ یہ اس لیے ہو سکتا ہونا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی بڑے ایشو سے بچانا تھا, بڑے نقصان سے بچانا تھا, کیونکہ اب میں نے واقعی سیکھ لیا کہ غصے میں کی ہوئی بات آپ کا کبھی بھی فائدہ نہیں کرتی, کبھی بھی فائدہ نہیں, صرف اور صرف آپ کو نقصان پہنچاتی ہے, اور وہ آپ کے پھر کانوں کو بار بار چبھتی بھی ہے. سامنے سمجھ نہیں آتا, جب آپ لاؤڈ بول رہے ہوتے ہیں تو سامنے والے کو بالکل پتہ نہیں لگتا, آپ سمجھ ہی نہیں پاتے. آپ مجھے کوئی سمجھاتا ہے تھوڑا سا لاؤڈ ہو کر, کوئی بھی کسی مجھے سمجھ نہیں آتی. میں خود بھی کرتی ہوں, لیکن میرے خیال سے آپ کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے, شرمین کو, کہ میں بہت غصہ کرتی ہوں, ایک دم غصہ آ جاتا ہے مجھے, لیکن بس تھوڑی سی دیر میں فوراً نہیں, میں نے اس کو غلط کہہ دیا. یہ بس ایک اچھی عادت آ گئی ہے بہت دنوں سے کہ فوراً جا کے سوری, اور فوراً جب میری بات بری لگی ہو, ہرٹ نہیں ہونا, میں تو ایسے ہی بول رہی ہوں, پھر اس سے بہت سارا مذاق کرنا, پھر اسے بہت تاکہ اسے فیل نہ ہو. لیکن یہ ان کی بات درست ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتی ہوں ایسا کہ میں بالکل کسی کو صحیح سے سمجھاؤں, ایسا ہوتا ہی نہیں. اگر ہم نیچرل ہیں اور ہم بہت مطلب ہمارا دل صاف ستھرا ہے تو ہمیں ایسا ہے کہ ہمیں کسی بھی غلط بات پہ غصہ آتا ہے. اب ہمیں نیچے کوئی اگر نہیں لینے آئے فار ایگزامپل, وہی شروع ہو جائیں گے, یار تم لوگ آتے نہیں ہو یار, یہ وہ, تھوڑی دیر بات کی, دونوں نے بچوں نے بات کی, ہم نے کی لفٹ میں, ٹھیک. ایسا غصہ ہونا چاہیے کہ آپ کو آنا, یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ایک پھر ہم بہت سمجھ کے جو ہم ایکٹنگ کرتے ہیں وہ کرنی پڑے گی
वो कोशिश ये ठीक कह रही है, करनी चाहिए ऐसे ही, लेकिन बहुत कम होता है ऐसा। जब आप बिल्कुल सही होते हैं और फिर बाद में आपकी घंटी बजती है, कुछ गड़बड़ हो गई, समथिंग रॉन्ग, कुछ ज्यादा बोल दिया, कुछ ऐसे, तो वो जब अल्लाह ने आपकी घंटी बजा दी उस वक्त जाकर सॉरी कर लें, या उस वक्त उससे इस तरह बात कर लें, जरूर ऐसे, हाँ, कि ऐसे कर लें। लेकिन आपा कभी कभार ऐसा होता है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, कि आप गुस्से में, जैसे आपने बात, मेरा भी ना गुस्सा अगर कभी आए बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा एंड देन आई एम फाइन, बात खत्म करो, मैं बात को कभी प्रोलॉन्ग करती नहीं हूँ। लेकिन उस गुस्से में आप कोई बात कह जाएं और दूसरे का दिल दुख जाए, फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं कर फिर वो दुख, जो फीलिंग्स आपकी वजह से दूसरे के दिल में आई है, जो तकलीफ दूसरे ने महसूस की है, आप सॉरी तो कर देंगे, लेकिन और सॉरी पे कुछ लोग माफ कर भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं नहीं माफ कर क्योंकि लोग सकती। कहते हैं वो हजरत अली का कॉल है ना, कील ठुकती है, जब कील लग जाती है दीवार में तो बहुत देर में निशान भी जाता है, निशान तो रहता है ना, आप कील हटा दे तो। और तभी होता है, इमाम मुत्तक़ियान ने भी कहा कि जो आपको गुस्सा है, आप बैठे हो तो आप खड़े हो जाए, मतलब फौरन अपने आप को एंगेज करें ताकि मुंह से आपकी ऐसी चीज निकले ना, तो हिकमत होती थी। अच्छा, नबिया भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, और नबिया ये जो गुस्सा है जिसकी आज हम बात करें, मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं बैठी हुई हूँ तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे आपको ना इजाजत भी नहीं होती आप गुस्सा करें। बिल्कुल ऐसा आपको गुस्सा पीना भी पड़ता है, तो बहुत सारी वो आपकी जो चीखें होती हैं वो आपके अंदर भी रह जाती हैं, फिर कहीं ना कहीं और तरीके से भी निकलती हैं ये चीखें, ऐसे ही है। लेकिन ये जो गुस्सा है, आप इसने आपको, आपकी पर्सनालिटी को या आपकी क्या किसी रिलेशनशिप को, क्योंकि इससे पहले कि हम बात करें डिटेल में, तो मैंने कहा खुद भी तो बात करें ना, हम भी तो इंसान है ना, हमें भी तो गुस्सा आता है। बिल्कुल। तो आपको कैसी बात पे गुस्सा आया हो जिसका अभी पछताती हो कि हाई क्यों आया था? अच्छा, मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं खामोश हो जाती हूँ, बस जहाँ मैं खामोश हो जाऊँ तो मेरे फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि मैं गुस्से में हूँ। मैं गुस्से में बात नहीं करती और कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसे जुमले या कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना हो सामने वाले के लिए कि जिसमें, देखें, ये एक कॉमन इमोशंस हैं। एंगर इश्यूज सबको होते हैं और सबके साथ होते हैं, इंसान को बनाया ही गुस्से के साथ है। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जीज़ जो हैं वो ज़ाहिर है कि शामिल हैं। उसके माइंड को आप अपने माइंड के मुताबिक जो है वो जिस तरीके से आपका माइंड बना है उसमें नेगेटिव चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, डिपेंड ऑन यू आप कौन सा ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग का। तो यहाँ पर जो खामोश होने का हुक्म है ना, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा साइंस के साथ साथ जो है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी जो है वो फॉलो करती हूँ। रूल्स अगर मैं दूसरों को कहती हूँ तो फिर मैं अपनी लाइफ में भी इसको फॉलो करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा जब गुस्से की हालत हो तो शायद मैं सिर्फ इतना कह देती हूँ कि मुझे बात ही नहीं करनी है और ना मैं बात करना चाहती हूँ। यहाँ पे बेहतर होगा कि मुझसे इस टाइम बात ना की जाए। इवन मैं अपने घर वालों को भी कह देती हूँ कि मुझसे इस वक्त बात ना करें आप, मैं कुछ वक्त बाद। अच्छा, वो एक शॉर्ट पीरियड होता है गुस्से का और उसके बाद जो है वो एक नॉर्मल सिचुएशन आ जाती है। इसको कहते हैं कॉमन इमोशंस। ये ट्रिगर्स हैं जो कि आपको साइकोलॉजिकली जो है वो आप हर्ट हुए हों, आपकी इमोशंस जो हैं वो हर्ट हुई हों, या आप किसी किस्म की कोई एम्बैरेसमेंट हो या ओवरफ्लो कर जाए, क्योंकि जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है ना तो गुस्सा तकलीफ़ बन के निकलता है। और सूरत हाल ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई गुस्से की हालत में हो तो उसको देखो कि वो गौर से सुनो कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि गुस्से की हालत में वो जो कह रहा है वो उसकी हकीकत है। यानी गुस्से की हालत में जब आप किसी को देखते हैं ना, वो उसकी हकीकत होती है कि उस बंदे का अंदर क्या है, इनर क्या है। गुस्से में लोग ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, बाद में जो है वो परेशान होते हैं कि हमने ये बात उसको क्यों कर दी। अच्छा, अंदर से ऐसे नहीं होते या गलत नहीं होते, लेकिन क्योंकि उस वक्त इमोशंस को हैंडल करना नहीं आ रहा होता, साइकोलॉजिकली नहीं समझ रहे होते कि इस गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। आज से 1400 साल पहले बता दिया गया कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप अपनी जगह तब्दील कर लें। अब मैं आपको इससे साइंस से, साइकोलॉजी से इसको कनेक्ट करके बताती हूँ कि हमारी एक टीचर थी, उन्होंने हमें 35 फार्मूला दिया था। उन्होंने कहा 35 सेकेंड्स जो हैं वो अगर आपने अपनी लाइफ के कंट्रोल कर लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका वो गुस्सा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उस 35 सेकंड के बाद जब आप किसी से भी बिहेव करेंगे तो वो मिसबिहेव नहीं होगा। वो क्या था कि जैसे जो है वो आज से 1400 साल पहले फरमा दिया गया कि गुस्सा आए तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हो तो खड़े हो जाओ, नहीं तो पानी पी लो। ये सेकंड्स हैं, यानी कि आपको टाइम दिया गया, आपकी एंगर मैनेजमेंट का असूल आपको समझा दिया गया। फिर साइकोलॉजी ने जब तरक्की की तो उसने 35 सेकंड्स आपको दिए कि 35 सेकंड्स अगर आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं किसी और चीज़ में तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई ऐसी गलत बात या चीज़ आप दूसरे को नहीं कह पाएंगे जिससे आपको जो है वो तकलीफ़ हो या बाद में आपको ये सोचना पड़े कि मैंने इसे गुस्से में ये बात क्यों कर दी। सबके मुंह से कोई ना कोई बात निकल जाती है।
इंसान फरिश्ता नहीं है, हम भी शामिल हैं इसमें, सब लोग शामिल बिल्कुल हैं. ऐसे ही. कभी गुस्सा इस लेवल पे भी आ जाता है, हाँ गुनहगार लोग बैठे हैं. बिल्कुल इस लेवल पे भी आ जाता है गुस्सा कि हम जो है वो दूसरे को वो अल्फाज कह देते हैं कि बाद में एहसास होता है कि नहीं ये हमारी पर्सनैलिटी जो है वो इससे ख़राब हुई है. असल में गुस्सा आता तो तन्हा है, लेकिन जाते हुए ना ये अपने अखलाक की जो आपकी खूबसूरती और शख्सियत सब बहा के ले की, जाता है. हाँ जो आपकी शख्सियत की खूबसूरती है ना उसको तबाह कर देता है. तो इसलिए बहुत कोशिश करें कि अल्फाज का चुनाव गुस्से के वक्त जो है ना वो वहाँ अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं इसको थोड़ा सा डीप लेके ये- जाऊँ. जी 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 बताइएगा. नहीं डीप लेके जाए जरा हम इसको. हाँ सुन रहे मैं हैं, चाह रही थी enjoy कि मैं इसको करें. आपको बता दूं कि ये एंगर्स इश्यूज़ के प्रॉब्लम कहाँ कहाँ जो है वो आते हैं और ये कितने किस्म का होता है. देखें, एक तो अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप पहले से ही कोई स्ट्रेस ले रहे हैं, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है वो आपको परेशान कर रही है, उसकी मैनेजमेंट करने के मामलात या तरीक़ेकार आपको नहीं समझ आ रहे, आप गुस्से में आ जाएंगे. एंजाइटी है अगर आपको तो लाजमी आपको गुस्सा आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपको एक छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है. फिर अगर आप कोई एम्बैरसमेंट है आपकी लाइफ में, कोई ऐसी एम्बैरसमेंट जिसको दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, तो अपने आप को उस एहसास कमतरी से एहसास बरतरी में लाने के लिए कुछ लोग जो है वो गुस्सा करते हैं. ये अपने आप को शो करते हैं कि हम अगर गुस्सा करेंगे तो दूसरे पे हमारी पर्सनालिटी का रौब बहुत ज़्यादा होगा, या हम गुस्सा करेंगे तो लोग हमसे डर के रहेंगे. असल में ना नबिया मसला हाँ. ये है कि यहाँ पे ना लोग भी ना आपको, अगर आप बहुत सारी चीजों को मतलब कर दें ना कि चलो ठीक है कोई बात नहीं लेट गो कर दें, हाँ. तो लोग आपको इजी लेना शुरू easy कर लेना देते हैं. शुरू फिर कर कहीं ना देते कहीं लोगों को ना अब ये, क्योंकि ये फियर है, आजकल ना हम ये साइकोलॉजिकल very इशू है, sadly फियर हम है, एक ऐसे इस वजह era- से करते हैं. नहीं मैं आपको बताऊं, ये हाँ. असल में हम जिस एरा में रह रहे हैं, अगर आप अपने हक के लिए ना बोलो, ये आपके साथ कहीं खराब हो रहा है, लोग आपको लग रहा है कि लोग आपको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, और फिर अगर आप बोलना शुरू करें जी 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 जी. तो मतलब ना बोले तो लोग कहते हैं यार ये तो ऐसा कोई नहीं, यार ये तो इजी है जरा कोई मसला नहीं. लेकिन बात है. कहीं कहीं आप कहते हैं यार मुझे बोलना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल, गुस्से की सूरत में आपको बिल्कुल, बोलना बिल्कुल, पड़ता है. और बोलना हमारे चाहिए. जनाब जो एक और गेस्ट हैं जी. वो भी यहाँ पे पहुंच गए हैं. मैं चाहूंगी इनका माइक लगे फिर उनको हम यहाँ पे बिठाएं. लेकिन मैं आपके पास जो भी आप बात कर रही जी, जी, हैं बिल्कुल, और ये बिल्कुल, हम इस पे इसको बात करें. एग्जैक्टली नोट करें, क्योंकि हाँ पूरे 2 घंटे में हमने क्या करना है, और ये वाकई 35 सेकेंड्स की थेरी कमाल है. वैसे आप क्या करती हैं अगर आप गुस्सा आए तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग बैक टू व्हाट शी जस्ट सेड, मुझे नहीं पता था कि हजरत अली का ये कॉल है कि इंसान जो गुस्से में है वो असल में है. Oh, yeah. और मुझे ये मैं ये सुन के शेक हो गई हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मदीहा, जो जैसे कि मैंने आपको बताया 1 महीने पहले जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, और जो मैंने बात कही, that's not who I am. I'm not a mean person. I don't like to hurt people. मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, लेकिन मेरी उस बात से किसी को तकलीफ पहुँची है, और मुझे ये सोच के बहुत अफसोस हो रहा है कि क्या मैं वाकई ऐसी हूँ. वही, लेकिन वो उन्होंने बात की ना कि आपको जब गुस्सा आता है आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, एंड यू डोंट नो हाउ टू, जब आपकी बात कर रहे होते हैं. नहीं डोंट थिंक लाइक दैट. भाई मैं माफी मांगती हूँ, हमारी इतनी प्यारी शर्मीन है कि बाकी गुस्से में इंसान चीज कर रहे हैं, जो आपकी दोस्त हैं. हम लोग तो आपकी अभी मेकअप में इतनी तारीफ कर रहे थे कि शर्मीन वेरी इतनी स्वीट प्यारी है कि वो इतनी प्यारी है, वो इतनी स्वीट बंदी है. So, मैं ब्रेक लेती हूँ, मैं छोटी सी ब्रेक के बाद मिलती हूँ, कहीं मजा आएगा.